मेरे मास्टर्स के लिए 5.5 लाख रुपए खर्चा किया था। इस रूम में सारे लोग इतने पैसे नहीं कमा रहे होंगे। He only uses buttons and rubber bands to make a garment. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग मेंट यू हैड योर ओन ऑफलाइन बुटीक। तो मेन में आपको कुछ भी सिंथेटिक फाइबर नहीं मिलेगा, कोई केमिकल डाई नहीं मिलेगा, सो इट्स ऑल ऑर्गेनिक, ऑल नेचुरल डाइज। बुटीक नहीं है, बट हमें काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑर्डर्स हमारे इंस्टाग्राम पे इतने सारे आते हैं, मतलब रोज आई थिंक बहुत सारे आते हैं। पागल करती हमें मर गई। This is for all the fashion learners. You need a mentor if you don't have one. But I think हम Skill in a Box में exactly हम यही try करते हैं that we try to be mentors for everybody. और भी कमा सकते थे, लेकिन वो उनके अंदर उनका आलस उनको कमाने नहीं देता था। Skill in a Box का एक ही विजन है, घर घर तक एंटरप्रेन्योरशिप को पहुंचाना। एंड जैसा कि आप सब जान चुके होंगे या जानते होंगे, स्किल इन अ बॉक्स एक डोर स्टेप स्किलिंग प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, जहां कोई भी महिला आके एक फैशन डिज़ाइनर या एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं एंड अपनी खुद की इनकम शुरू कर सकते हैं। हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया है ये करते हुए, 1 साल 2 महीने। एंड अपनी जर्नी को आप तक लाने के लिए हमने एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू करी थी, जहाँ पे पहले पॉडकास्ट में हमने अपने एक लर्नर से बात करी थी, मनदीप जी। So Mandeep is actually one of our learners, and she comes from a middle class family. She joined the program in a hope कि she can become a fashion designer super soon and she can start her income journey. तो proud to say कि मनदीप जी की जर्नी खत्म हो चुकी है, she's got certified and she started earning as well. Oh, she started earning too? Yes. Okay. So now ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। यहाँ पे हम किसी लर्नर को नहीं लाए हैं, हम सीधा एक established फैशन लेबल को ले आए हैं। So first of all, I would like to welcome Hina. Thank you, Prateek. Thank you for having me here. So Hina is a fashion designer and she runs her own label since the past couple of years. कुछ सालों से अपना खुद का लेबल चलाती हैं इंडिया में, मेंड के नाम से। So before we get into कि हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, and we would love to know कि who Hina is, कौन है Hina, कहाँ से आई है Hina, कहाँ को जाएगी। बहुत लंबा जाएगी, बहुत दूर जाएगी। Well, if I talk about myself, I'm Hina Arora. I started my fashion career right after my schooling. So I joined a design college here in Delhi after 12th. So I did 3 years program in it. And after completing my bachelor's degree, I shifted to Mumbai for my master's. So I did my 2 years master degree from Mumbai. उसके बीच में कुछ नहीं किया आपने, सीधा मास्टर्स? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद सीधा मास्टर्स, बैचलर्स के बाद मास्टर्स। So yes, because I was like very clear in my head that this is where I need to build my career in. So yeah, it was an Italian college in Mumbai called Istituti Caligari Milano. It's in Powai. Istituti. Yes. Istituti Caligari Milano. ये तो मतलब एकदम वो मिलान, मतलब रोम वाला हो गया। हाँ। तो मैंने वहाँ से 2 साल का मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। While I was doing my masters, I used to visit Lakme Fashion Weeks, and I used to worship a designer called Anuj Sharma, and he is considered to be a god in our industry when it comes to draping. So there I met him. I walked up to him, I showed him my portfolio. Fortunately, I got lucky enough to, do my internship under him. कौन थे ये? Anuj Sharma. And इन्होंने मतलब if you can name कि हाँ, he has his own brand called Button Masala. He's a renowned artist actually. He comes from NIT. And what he does is he makes garments with no machinery stitch in it. He only uses buttons and rubber bands to make a garment. अच्छा. Yeah. So. तो ये NID की खासियत है. NID हाँ. National Institute of Design. Yes. So I joined Anuj. I completed my 6 months internship under him, and then, as I said, I was lucky enough to, get to work under him. He offered me a job. So I worked with him for like almost 2 years in Ahmedabad. So that was the period when I actually got to know what really design is.
because I got introduced to NID, I got introduced to a lot of people from NID. So yes, so that was the actually turning point in my career. So from there I got to work on few government projects. We designed uniforms for police, and so this was the beginning of my career. Wow. Yes, and then I shifted back to Delhi. I owned my fashion boutique here. I ran it for like good couple of 2.5 years. अच्छा, before starting Mend, you had your own offline boutique. Yes. Okay, wow. हाँ. But then, there I realized that was not my cup of tea. अच्छा. Yeah. So because owning a fashion boutique, I had different, completely a different idea in my head that I'll showcase my collection, but at the end you get carried away when you see that you're getting a lot of customization orders. So ये प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं. हम एक बुटीक नहीं है, बट हमें काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑर्डर्स हमारे इंस्टाग्राम पे इतने सारे आते हैं, मतलब रोज़ आई थिंक बहुत सारे आते हैं. आई कैन रिलेट. तो वो जब भी दिखता है ना कि हाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, तो आपका फोकस, मेरा तो डेफिनेटली हिल गया था. सो आई गॉट मोर इनटू कस्टमाइजेशन. माय कलेक्शन वाज केप्ट असाइड. Then I ran it for, like as I mentioned, I ran it for more than 2 years. But then I was not satisfied with it, so I wrapped it up. Okay. And then I took good break for a year or so. Then in June 2020, I came up with an idea like this. I already had this idea in my head, but there was like I didn't know how to execute it. So yes, I came up with an idea of recycling. So the whole idea, and that's how Mend, the name Mend was found. So the idea was, I used to ask people to give me their sarees, looking at my mother's wardrobe and like other females' wardrobes. इवन यू माइट हैव नोटिस कि वो ऐसा स्टैक करके रखते हैं कुछ साड़ीज जिसमें उनके मेमोरीज इंटैक्ट होते हैं, और वो है ना, वो यूज़ भी नहीं होता बट इट्स देयर इन द वार्डरोब, एक कॉर्नर वो खा रहा होता है. तो मुझे वहाँ से आइडिया आया कि आई आस्क पीपल कि मुझे वो अपने ऐसे साड़ीज दें, टू इन रिटर्न लाइक इट वॉज लाइक आई वॉज नॉट आस्किंग देम टू डोनेट इट, बट इन रिटर्न आई वॉज पेइंग देम समथिंग. Yes. So this is basically on, I think, कि आपकी मेंट की जर्नी कैसे शुरू हुई. Right. उससे पहले I would really want to say, I mean, first of all, thank you for sharing your journey. And अभी तो I think definitely we have a lot to speak. But the one thing which probably सब viewers को and सारे learners को ये एक बात पता होनी चाहिए, that you are what you are today because you were lucky enough to find a good mentor. Right in the beginning, right? So I think and I also believe that having a mentor at an early stage is very necessary. Definitely, yes. Because उस mentorship से ही आपको ideas आते हैं, आपका network बढ़ता है, and आप आगे चलते रहते हो. Exactly, हाँ. मतलब आप practically अगर आप कुछ सीखने को आपको मिलता है, so that is all through your mentor. So this is for all the fashion learners. You need a mentor if you don't have one. But I think हम Skill in a Box में exactly हम यही try करते हैं, that we try to be mentors for everybody. In the training program, at our Instagram level, etc. So मतलब Instagram पे जैसे आपने देखा होगा कि हम काफ़ी designs अपनी ऋत्विक अपनी release करता है, just so that anybody can get inspired from that design. And because जैसे आप अनुज राइट, आप अनुज के साथ वहाँ पे फिजिकली थे, सो आर वुमेन लर्नर्स आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया. तो फिजिकली तो टच मतलब हमारे किसी का है नहीं किसी लर्नर के साथ. सो दैट्स हाउ मतलब देयर इज अ रीजन ऑफ why we do what we do at our Instagram and our YouTube. कि सारे learners inspire हों from different ideas and different things with different types of content also. कि मतलब गारमेंट कैसे बनाना है और उसमें कैसे कंटेंट डालना है so that आपका ग्रोथ कैसे हो सकता है. So mentorship is very important, I think, and that is one thing.
Moving forward, I was about to ask this question, why did you start Mend Up? I think अच्छा, I've already answered it, right? But हाँ, like a little brief more on it कि जैसे आपने साड़ी का business हाँ, तो साड़ी वाला जो मैंने अब बताया, मैंने वो स्टार्ट किया. आई वर्कड ऑन इट. इट went pretty well also, but then the only challenge I was facing was if I was getting repeated orders, no, I was not being able to deliver it. मतलब वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक साड़ी में 5.5 मीटर फैब्रिक होता है. उससे अगर मैं बहुत स्ट्रेट और ऐसा कपड़ा बना भी दूँ तो मैक्सिमम में 2 या 3 ड्रेसेस निकाल सकती थी उससे. सो दिस वाज लाइक द चैलेंज. स्केलेबिलिटी का. हाँ. तो फिर और उसको स्टार्ट करने का आइडिया ही था रिसाइकल, सस्टेनेबिलिटी, वो सारी चीज़ें होते होते देन आई गॉट इनटू लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो अगेन आई हैव मैं अभी तक अपने कोर पे मैंने स्टिक करके रखा है बिकॉज मेंड, अगर आप हमारा हिस्ट्री देखोगे तो मेंड इज़ ऑल अबाउट फैब्रिक्स, लाइक गुड प्योर फैब्रिक्स. तो हाँ, we are a sustainable brand. We majorly work on 2 fabrics. So one is organic cotton, Okay. another is khadi. Okay. Yeah. तो मेन में आपको कुछ भी सिंथेटिक फाइबर नहीं मिलेगा, कोई केमिकल डाई नहीं मिलेगा. सो इट्स ऑल ऑर्गेनिक, ऑल नेचुरल डाइज. यस. So everybody can go have a look at Mend. और अगर आपको कहीं नहीं जाना, so I think you are also wearing Mend. यस. So that is a good thing. Wear your brand always. I'm wearing Skill in a Box. So yes, great. काफ़ी I think inspiring journey है for everybody and for all the learners out there, because it is not easy also to be a designer and step out. But yes, mentorship is very very important, I think. आपका विजन, और अगर मैं पूछूं कि मिशन क्या था मेंड को लॉन्च जब आपने किया था, लाइक कहाँ, लाइक व्हाट वाज एग्जैक्टली द मोटिव बिहाइंड लॉन्चिंग मेंड? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट विजन, तो विजन मेरा यही था टू क्रिएट, यू नो, लाइक आई बिलोंग टू, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन फ्रॉम मध्य प्रदेश. इट्स कॉल्ड सतना. एंड आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन फैमिलीज जहाँ औरतें, दे आर लाइक वेरी स्किलफुल, उनके अंदर है बहुत कुछ करने का, लेकिन दे डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, दे डोंट गेट द प्लेटफॉर्म जहाँ वो निकल कर कुछ उनके लिए कर पाए. सो येस, द विजन वाज टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर वुमेन. एंड yes, this exactly what my vision was. And to keep the Indian culture. And yes, right. To keep the Indian culture and our history intact in our garments. Because आपके garments जो भी मैंने देखे हैं आपके online, मतलब सारे I think of course they look cotton, because I'm sure they are cotton, but they also have a very Indian touch to every garment. I mean, be it a quad set or be it a yes. हाँ, तो हम मेन में ना, हम 2 हमारा लाइन है. वन इज लाइक वी मेक ब्लॉक प्रिंटेड गारमेंट्स, वो जो एज आई मेंशन की कॉटन और खादी 2 अलग अलग. सो द खादी थिंग इज वी गेट इट वीव्ड. अच्छा. So even like if you'll see this printing, this is also block printing. So Okay. we get our blocks developed, we get our designs customized for blocks, and then we get it printed. So it's not that कि हम मार्केट में जो बिक रहा है वो हम उठा कर लेकर आ जा रहे हैं और खाली उसको बेच रहे हैं. हाँ, तो वो नहीं है. I totally agree. So okay, so coming back, I think to sum it up, जैसे आपने अभी बताया that आप खुद डिज़ाइन करते हो अपने गारमेंट्स. हाँ जी. सो जो भी मेंट पे सारे गारमेंट्स हैं वो आपने डिज़ाइन करे हैं, एंड उसको डिज़ाइन करने के बाद आप जब मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हो, सो यू ऑल्सो गेट योर ओन फैब्रिक मेड. सो वीविंग, इन्होंने बोला ये अपने खुद के फैब्रिक्स वीव कराते हैं. वीविंग इज अ प्रोसेस, आप ही एक्सप्लेन कर दो. वीविंग इज अ प्रोसेस जहाँ फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स को जॉइन करके थ्रेड बनता है. हाँ. थ्रेड्स को लूम पर, वो उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, बुनाई इज वीविंग. उसको बुनकर एक एक थ्रेड को साथ में जॉइन करके पूरा फैब्रिक बनता है. सो दैट इज वीविंग. गॉट इट. सो मल्टीपल थ्रेड्स को जॉइन करके एक फैब्रिक बनता है. तो ये अपने खुद के फैब्रिक बनाते हैं. मतलब ये ऐसे फैब्रिक्स हमें बाहर मार्केट में नहीं मिलेंगे.
सिंपल। एंड तो डिज़ाइन आप करते हैं, आप ही अपना वीव करते हैं, एंड प्रोडक्शन में आपके जो ब्लॉक्स हैं वो भी आप खुद ही अपने डिज़ाइन करके बनवाते हैं। सो ब्लॉक प्रिंटिंग इज ऑल्सो अ बिग थिंग। यस यस। Got it. So how big is block printing? Because आपने block printing बोला, so that's why I want everybody to Block know. printing is huge. I mean, block printing can be done on home furnishes, it can be on your garments, it can be anywhere on ये जो anything आपने you पेन want. रखा है ये block printing है? हाँ, ये ब्लॉक प्रिंटिंग है। Wow. और ब्लॉक प्रिंटिंग हमारा बहुत पुराना, इट्स एन एज ओल्ड आर्ट ऑफ राजस्थान बेसिकली। तो हाँ, उसमें इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा लेबर, हार्ड लेबर लगता है उसमें, क्योंकि आई और हाथ का कोऑर्डिनेशन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कितना कमा लेते थे आपके जो पुराने कारीगर थे? लगभग 20 से लेकर 48-50 तक। और भी कमा सकते थे? और भी कमा सकते थे, लेकिन वो उनके अंदर उनका आलस उनको कमाने नहीं देता था। अच्छा, so आलस कभी मत करना गाइस, डेफिनेटली। एंड तो अब बेसिकली एक वो वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था, एंड जिससे हमारे काफ़ी लर्नर्स भी मतलब देखेंगे, तो आपने पूरा कितना पैसा खर्च किया एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए? मैंने पूरा कितना पैसा खर्च कितने किया? लाखों में आपने खर्च किया? मैंने, अगर मैं खाली मेरा मास्टर्स का बताऊं तो मैंने मेरे मास्टर्स के लिए 5.5 लाख रुपए खर्चा किया था। तो आपने काफ़ी पैसा खर्च किया है, अपार्ट फ्रॉम योर जो भी आपने सामान खरीदा होगा टू बेसिकली। हाँ, उसके अलावा स्टेशनरी का अलग, मेरा रहने का अलग, जो SIB शायद सब कुछ उनके घर पे बैठ के Yes. करवा रहा है। Yes. सो वी वर नॉट लकी इनफ टू डू ऑल दैट सिटिंग एट आवर कंफर्टेबल स्पेस। फेयर इनफ। सो बेसिकली आप, सो टू सम इट अप, अगर आप एक अच्छी तरह अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो हमारे SIB में, एंड आपकी 5 महीने में आप एकदम फुल ऋत्विक के साथ या किसी भी और ट्रेनर के साथ आप डे टू डे अच्छे क्लासेस ले रहे हो एंड अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रहे हो, सर्टिफाई हो रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 20 to 40-50,000 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। सो यस, तो ये फिगर आप याद रखना प्लीज। इस रूम में सारे लोग इतने पैसे नहीं कमा रहे होंगे। सो आप एक फैशन डिजाइनर बन के कमा सकते हो। बढ़िया। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको बोलूँगा या पूछूंगा दैट वुमेन या किसी भी और को SIB क्यों ज्वाइन करना चाहिए? वुमेन या किसी और को भी SIB इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, सबसे पहला सवाल, अगर SIB तब होता जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं तो डेफिनेटली करती। एक तो पैसे बचा रही थी मैं अपने, दूसरा जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ, वो एज आई मेंशन्ड जो आपका करिकुलम है वो ऑन पॉइंट है, बहुत क्रिस्प है। मतलब 5 महीने अगर आप अपने थोड़ा डेडिकेटली उस पर दे दोगे तो yes, no doubt, like right after 5 months of yours you would be able to start earning. प्लस आपको कहीं जाना नहीं है, आपका कोई रूटीन उससे आपके अपने रूटीन से हट कर आपको कुछ नहीं करना है। यू कैन चूज़ योर ओन कंफर्टेबल टाइम, कि आप कौन सा टाइम पे कंफर्टेबल हो तब आप आपके लेक्चर्स ले सकते हो। इवन इफ़ यू हैव किड्स, तो इन एवरी वे आई मीन आप अपने हिसाब से अपने क्लासेस ले सकते हो, सीख सकते हो और एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सो इसी के साथ वी आर ऑल्सो एंडिंग आवर दिस पॉडकास्ट। बट अगर आपके कोई भी सवाल हो हीना के लिए, कमेंट्स में लिखिए, वी विल डेफिनेटली आंसर देम। एंड अगर आपने प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है तो आप प्लीज़ एनरोल करिए जल्द से जल्द, बिकॉज अगर आपको अपनी इनकम जर्नी शुरू करनी है स्किल इन अ बॉक्स के साथ, तो एक दूसरा काफ़ी अच्छा तरीका आया है इनकम स्टार्ट करने के लिए। एंड बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, एनरोल करना है, 5 महीने में अपना प्रोग्राम अच्छी तरह ख़त्म करना है, एंड फिर ऐसे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके अपना इनकम जर्नी शुरू करना है। जल्दी एनरोल करो, अभी मेंड को भी ज़रूरत है आप लोगों की। बट थैंक यू सो मच हीना फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच अगेन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर ट्रस्टिंग अस, आवर करिकुलम एंड आवर लर्नर्स। I would say thank you a lot for having me here,
And yes, I would still say your learners, your team, they have gained the trust. Thank you yeah. so much. Do I like it? Cheers.